अस्सलाम वालेकुम जनाब यारी वेलकम बैक टू अंदर रिएक्शन वीडियो मैं कोई रिएक्शन वीडियो लेके आ गए जनाब ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਅ ਵਾਈਲ ਆਫਟਰ ਬੀਨ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਬੀਨ 100 ਡੇਜ਼ ਮੈਨ 100 ਡੇਜ਼ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੰਜਾ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਯਾ ਜੋ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾ ਰੋਸਟਿੰਗ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ ਐਨੀ ਆਫ ਦੈਟ ਹੋਨੈਸਟਲੀ। ਬਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧੜ ਲਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਢਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਗੈਮਲਿੰਗ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੁਲਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਝੇਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਫੀਲ ਬੈਡ ਫॉर ਹਿਮ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵਲੌਗ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਕੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ख़त्म किंज होया तो शुरू किंज होया। बस घंटे की वीडियो है सेट हो गए बैच हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर-ए-मान बन के बात करूँगा ना कि डक्की भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी लो भाई पहली चीज़ ही माफ़ी नाल शुरू हो गई। को मतलब पहली माफ़ी होना आते तक मैंने माफ़ कर दो जो कोई कंटेंट दे हो ओके भाई ओके सानू तो कोई मनु तो कोई आया को नहीं, जे तुहाडे वालों कोई आया साहब यार वो माफ़ी मांग रहे माफ़ कर दो। हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਮਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੈਮਲਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ICC ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਢਾਈਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ। बट yeah he's talking about the promotion as well। मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूंगा। अच्छा ये पूरा मैटर मुक्या नहीं ओके, बट ही इज़ बैक फ्रॉम जेल दो, ही इज़ बैक फ्रॉम जेल। कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फ़ैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। ठीक है। मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। ठीक है। मेहमान चले जाते हैं, उसके बाद मैं और रूब पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है उधर से All Star Influence Awards. Okay. Sadur Rahman, dear Sadur Rahman Zulfikar, we are excited and thrilled to welcome you to All Star Influencer Awards 2025 that will be held on 17, 18, 19, 20, 21, 22 August at Malaysia. Wow. Well, okay, ठीक है भाई। इन्होंने इनवाइट किया गया, इनवाइट आया होता है कि comment by All Star pre-event until August. Posting, citing, shout out about coming to Asia. Okay, one story Instagram, one story on TikTok, one video on Instagram, one video on TikTok feed. Okay,
every post content by all star in which we tag user name hashtag all star ओके ठीक है भाई उन्होंने वालों जो इंस्ट्रक्शंस ने भाई दी गई हैं हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फ़ीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज़ से भी उन्होंने एक मेल एक फ़ीमेल इनवाइट किए हुए थे। पाकिस्तान में जो है मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर है वे समझ रहे हो तुझे कह सकते सो मेक सेंस। और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज़ करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं राइट फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? ओह मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और अरूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है तो शायद हम फ्लाई ना कर पाएँ, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ पे पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें। और अरूब की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकती हैं। अरूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चले जाती हूँ, वरना मैं इधर ही ठीक हूँ। ओके शायद ये मेरी गलती ही, मुझे उसको जाने देना चाहिए था। अच्छा क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे अरूब को मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन यार अलॉट ऑफ मतलब बंदा शुरू ही हो गया नाले बैकग्राउंड विच म्यूजिक भी शुरू हो गया ते ओके समझ आ रही है स्टोरी दी। वाले हमें एक रूम में बैठाए थे, मैं और वो बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये डिस्कस करें। ठीक हो गया। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या है। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मुझे गाड़ी में बैठा देते हैं। अरूब कहती है कि मैंने भी साथ आना। मैंने उसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं। मतलब ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? मतलब ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? मतलब ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। मतलब आई फील लाइक ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਸੇ। मतलब दैट्स काइंड ऑफ इलीगल एट लीस्ट इन अदर कंट्रीज आई एम श्योर यू नो ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਕਿੰਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी पुलिस स्टेशन NCCI ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर लकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। न्यूज़ लकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। NCCI लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मदाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई 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 रात के तकरीबन 11 बजे हम NCCI ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCI के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। वहां पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहां पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, बिकॉज आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। ट्रू। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक के जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मोटा केंज है तो पूरा सारा साण भी कह लो, मतलब ना वो कोई कार्टून दे विचों कढ़ के पाया। गॉड डैम है तो ये है। ये जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे FIR होने वाली है।
मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या है, Right. किया क्या है। तो जो प्राइवेट बंदा जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे MI है, तेरे पीछे क्या क्या ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐ ਹੋਣ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ क्यों नहीं दसिया जा रहा है शोधे नू। ये कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाला कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है, मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए सो गए, दैट्स राइट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। खैर उन्होंने मेरे पे FIR दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने ज़िंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया, मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से NCCI ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ ओए किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन। यार ऑनेस्टली शुरू तो ही मैंने पता है कि साढ़े ने क्या बंदे को पैसा क्यों है, सड़े ने बंदे को, मतलब साढ़े कोल ते है ही है ना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ साइड तो माड़ा जा वध क्यों आ गया भाई। लाइक गॉड डैम मैन, लाइक बेशक इंडिया हो जाए, बेशक पाकिस्तान हो जाए, साढ़ा जिदे कोल पैसा आ जाए, बेशक वो मेहनत दा भी होए, मतलब छड़दे नहीं है, खत्ता नहीं छड़दे, बंदे ने थल्ले सट्टन नु लगदे है। गॉड डैम ब्रो। सब्सक्राइबर हैं उधर एडसेंस। अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ, कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। हाँ वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होके ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। हाँ तो कहता मुँह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुँह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है, मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ। यार स्टिल नाउ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਯੂ نو ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੂਫ ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਿਜ਼ ਸਾਈਡ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਨੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਣ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਯੂ ਨੋ ਗੈਮਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਨਥਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ तेरा तू पैसा पाया एप्लीकेशन विच, ठीक है, तो तू दस तेरे को इन्ना पैसा आमदा कितों है। इफ जब बंदा टैक्स टुक्स दे रहा है दैन आई डोंट थिंक सो ਇਹਦੇ ਕੋਲ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਸੂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂ ਕਰਨ ਲਾ ਪਏ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਡੈਮ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਨੀ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਲੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता था मुंह पर कर,
फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है, वो मार ही गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने The fuck? अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में आई हर्ड अबाउट दिस थिंग टू। मैं कुछ दिन पहला ही गल परसों ही सुनी जी चीज़ की गल कर लिया। एने अपने पुत्र है बंदे ने, डक्की भाई ने नहीं, जड़ा बंदा डक्की भाई चपेड़ा मार रहा, ही इज़ गोना कॉल हिज सन हु इज़ अबाउट 5-7 years old। उन्होंने हायदा कि पुत्र है वे तेरा यूट्यूबर, फिर यूट्यूबर तो उन्होंने चपेड़ा मार रहा होगा। लाइक कम ऑन ब्रो। होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। ऑफ कोर्स हो जाने। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता है डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, जो बहुत जोर का पीछे खुत्ती विच, तो सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। मतलब अपने बच्चों ਨੂੰ ਉਹ सबक सिखाने ਦੇ ਲਈ ਇਹ कर गया। मतलब अपने बच्चों ਨੂੰ कि मेरे बच्चे उमें भी तंग आया होवे कि मेरे बच्चे डक्की भाई ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਐਲ पेरेंटिंग हो के ठीक है, तो ਉਹ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾइंड ऑफ सबक सिखा रहा है कि फिर ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ कि ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ कैसे बंदा यार है, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪੂ ਵਧੀਆ पेरेंटिंग नहीं ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ यार ਇਹ चीज़ गल भी की जाए इज जस्ट सो डम है। कहता नहीं चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि व्हाट द। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा ब्रो व्हाट। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। हमारे घर में जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। ओके ओके। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे मार की गालियाँ दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज़्ज़ाज़ या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई। जुनैद सलीम यार ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਂਕਰ ਆ ਯਾਰ। ਦਿਸ ਗਾਇ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। I love to watch his ਹਸਬੇ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈ। ही इज रियली गुड एंकर। वेट होल्ड अप, मैंने गल की थी जुनैद सलीम के बारे। कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, ठीक है, पिज़्ज़ाज़ या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, अमेजिंग एंकर, उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। हाँ, तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो
इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट तो पड़ी बाहर क्यों दसिया है? आगे बात आउट कर रहा हूँ। Exactly. मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ तो एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंटमैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं नहीं तू बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत ही मतलब ओ मनु यार इस गल की समझ नहीं आ रही डक्की यार कि जो भी कह रहा है मुझे इस बात की समझ नहीं आई, मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई, बट मुझे मे भी उसका मतलब हो कि तेरे पीछे आने वाला मतलब तेनों कोई सपोर्ट करने वाला जड़ा पैसों नाल सपोर्ट करन आवेदा तेनों बचाण ते आखेगा ए पैसे लो तो यार इन्हूं बाहर आवन दो, ऐ चीज़ की गल कर रहे हैं नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूँ। तो कहता कि ये जो तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना है तेरे साथ वही होना है, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई गेस्ड। ताउन मीन पैसा, जितना इसको पैसा देगा जितना ज्यादा यू नो या तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ आप कहना क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। 7-8 करोड़ आई गेस। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है। नहीं लाख दी तो नहीं गल कराने, लाख दे भरावा नहीं। सॉरी टू से बट ऐस कम्मां विच ए चवल दे पुत्तरां कहंदे है ने, समझ रहे हो ना, रिश्वत लैण वाले ए लखां लुखां विच नहीं पैंदे। ओही 2025 दे विच लखां लुखां विच ना, लखां लुखां वाला गम हुण तो अमाउंटां है ब्राइब्स दियां जड़ियां ने ना, रिश्वत वाली अमाउंटां बहुत उत्ते टुर गए ने। सॉरी टू से बट यस ए करोड़ां ते ही अपड़दी है। कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे रिसेंटली कुछ बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा रहा है। मुझे वहां से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं एमसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्स करके नाले ए वे बंदा जड़ा इनू चपेड़ा मारे आया, इन्हां दा नाम है मुहम्मद सरफराज चौधरी। शेरनी मामा कमेंट च लिखे आवे ए सेम गाय, दिस इज द एग्जैक्ट सेम गाय। सो 3,25,000 USDT आंदा पिया। 9,10,72,507 आख्या 9 करोड़ तकरीबन 9.5 करोड़ एदे कोल आया। ते तुहाड़ा दिल चवल यार बंदा ही मनूस लगदा है। ਇਹਦਾ मतलब है इस बंदे का मतलब है कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 करोड़ दे ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। सो 1 करोड़ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ पूरा वालेट या ना दे पासे कर दिंदा। ओके समझ गया, मैं समझ गया। वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्स करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्स, सरकार का मतलब मेरा के प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों अचीवमेंट है यार। मेरा ना गाना देण तू दिल करदा पे इस वीडियो दे विच ऑनेस्टली जो मैं चीज़ां सुनने आवां बट आई एम कंट्रोलिंग मैन। पॉडकास्ट दे के ये बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल लेता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो बिटकॉइन थले डिग पिया, लॉस में क्लोज करता है। मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है।
मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेरे पास जो टोकन और पड़े हुए थे वो सारे क्लोज करके उसको यूएसडीटी में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये यूएसडीटी ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 यूएसडीटी आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? मन्नू पूरी ये काफ़ी टाइम दी वीडियो पई है पर मन्नू अजे तक ऐ नहीं समझ आ रही है कि ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇਵਾਹ ਇਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਏ, 2-4 ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਚੱਸ ਵੀ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ बढ़ाइए, पैसे भी कढ़ाइए ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਐਪ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹਿਸ ਸਾਈਡ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ अक्ल दी चीज़ जड़ी अक्ल दी गल नहीं की थी, सीधी जड़ी गल है। तू जितना कह रहे हैं उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज़्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता था कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाने एग्जैक्टली नहीं ना हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 यूएसडीटी जिसकी पीकेआर के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, अब इस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया। क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत पर्सनल अकाउंट आया, गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो नैब का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट। एग्जैक्टली टोल्ड यू। उन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड पहला दास देता है भाई, करने के बाद उन्होंने वापस मुझे हवालात में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, मेरे से सोया नहीं जाता। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आते हैं हवालात, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस NCCIA इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई USDT का कोई रोला चलता है, तो उस पर क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसको बताया, मैंने कहा IO ने मेरे 9 करोड़ रुपया USDT ट्रांसफ़र कर लिया अपने पास। कहता अच्छा, तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं किसी से पूछ लूँ। मैंने कहा जी पूछ ले, मैं बड़ा टेंशन में हुई। उस पूरी रात मैं नहीं सोया। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाता है ऊपर ऑफिस में, मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। क्योंकि वो मुझे बता के नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे सर पे इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे ज़ेन का मवाद, अंतरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकलने को करी। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया, मेरा विजन काला हो गया, मैं बेहोश होने वाला। इतनी जोर का वो थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं? इतनी सी बात पर मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे IO के पास ले गया। IO कहता कि यार तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। एडिशनल साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। अब मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो इन्होंने ट्रांसफर किया था 3,26,000 USDT, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी थी। हर प्राइवेट मुलाजिम को पता था, हर ऑफिसर को पता था, हर IO को पता था, डिपार्टमेंट में हर ਉਹਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ सारे आ गया भाई, सारे बैठे अंदर जड़े आए ने। एक बंदे को पता लग गया था कि ये
इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शुएब रियाज आईओ के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। आईओ ने सोचा इसने बात आउट कर दिया है, सबको पता लग गया है। इन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि ये देखो हमने ये पैसे बरामद किए हैं इससे, जबकि उन्होंने बरामद की इंटेंशन से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे। इनकी ये इंटेंशन थी कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस दे के इससे डील करेंगे। ये इनकी शुरू की इंटेंशन थी, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। मैंने मार खा ली इसके बदले, मैंने कहा मुझे मारो जितना मारना है। डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, ये लोग घबरा गए, इन्होंने फटाफट कोर्ट में रिकवरी डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया है, जबकि वो बरामदी की नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। जबरदस्त मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। 3,20,25,000 और टूट जा USDT कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहाँ पे एक और बंदा आया था अपने काम से। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है आपने वीडियो के एंड तक याद रखना है। ठीक हो गया। काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार डक्की तेरे पे केस क्या है। मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुँचा है। मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको अब मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा। उसने उसे सर हिलाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं। अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। ट्रू। मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा। उसने ऐसे सर हिलाया, कहता अच्छा चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके। वो अपने कामों में लग गया। खैर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया। अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो ओदी क्यों इंटेरोगेशन हो रही है भाई, ओदा क्यों मोबाइल ले आ गया है, व्हाट द। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया। तो कहता कि इन पे भी FIR होगी। तो यो व्हाट द गॉन इन दिस स्टोरी मैन। यार पैसे आदे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। बस पता उन्हें पैसे कढ़ा लेने आ रेडी अद्धे ले लेने, बस 20-30% वापस किए गए ने आदे अकाउंट विच किनों लगता है। वो भी क्यों कि इन्हें पैसों की गल फैला दी है, सो कोर्ट के वालों उन्होंने कुछ सेंड करने पे, बट और उन्होंने किन्ने चाहिए ने यार। रूप घबरा गई, उसने कहा मेरे पे FIR क्यों होगी। उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया है, मुझे और मामा को के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो वो कहता कि नहीं FIR हो ना हो, ये जो आपके शोहर की FIR है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करेंगे। यो व्हाट दिस इज इनसेन मैन। ए मुल्क किथे केड़े पासे जा रहा है यार एदा कानून। सही गल है, मतलब अमीर बंदा हो के नहीं कोई कानून हाथ विच लै रहा। पहले तो आंदे यार अमीर है ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ यार, गरीब किथे जावे। घबरा गई। मैंने रूप की तरफ देखा, मैंने रूप की तरफ इशारा किया कि मैंने कहा बस बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ, बस ये वक्त गुजारो, बस इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वो रूप से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। मैंने यही कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अरूब को वापस भेज दूं घर। उसका मोबाइल वापस मिले ना मिले डजंट मैटर, वो घर जाए। आईओ ने अरूब का मोबाइल रख लिया। मैंने अरूब को कहा कि अब तुम घर जाओ और तुमने वापस नहीं आना। जब अरूब घर गई है तो उसने जब वकीलों से डिस्कस किया तो वकीलों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्री अरेस्ट बेल करवा लेंगे। तो अरूब ने कहा ओके। अगले दिन उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल करवा ली। जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई तो प्री अरेस्ट बेल की खबर पहुंच गई इदारे में, NCCI ऑफिस में, आईओ के पास और सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर के पास। इन्होंने फिर से मुझे कहा कि अपनी फैमिली को मीटिंग के लिए बुलाएं। मैंने घर वालों को कॉल की क्योंकि उसकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब इसको खतरा नहीं है और इसका मोबाइल भी उनके पास है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बुला लेता हूँ। ऑफिसर्स ने जो है मेरे घर कॉल करवाई। मैंने कहा कि अम्मा वो बड़े अफसरान, एडिशनल डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बुला रहे हैं, तो बाकी घबराएं ना, कोई इस तरह कोई नेगेटिव मीटिंग या इस तरह का कुछ नहीं है, तो आ जाए। मेरी माँ फिर आना कुछ ना कुछ करना है। प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में आ गए। सरफराज चौधरी साहब कहते जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है। तो रूप ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं।
जो आपने करना करें। 5 रुपए का एक नया सफ़ा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। Yo, man, what the ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਵਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਤੇ ਲਿਆ 5-7 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। और ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂ? रू मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, ये किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हो गए थे सबके। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ व्हाट्सएप खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज, और ऐसे मेरी माँ को और मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है। क्या कर लेंगे आप? जब वो इस तरह की लिस्ट दिखा रहा था, उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ। जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है करवाएं। नया पर्चे में हम पकड़े, हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। मैंने वहाँ पे सिर्फ सर को कहा कि जी सर आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज वक्त गुजारें बस। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि यार कुछ कहने को नहीं थे। दे वर शेकिंग। वो बातें करता गया, हम लोग घबरा गए थे। हमने बस वेट किया कि यार ये कब हमें फारिग करेगा। जब उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, मैं, अरूब और मेरी माँ जब उस एडिशनल डायरेक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, अरूब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि यार मुझे बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर ये इस तरह की हैं, डराने चेंज कर देते हैं टॉपिक, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है। एग्जैक्टली। इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी जान छोड़ें। तो ये इस तरीके से मुझे, मेरी फैमिली को ज़हनी अजियत देते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं। अरूब का राइट बनता है कि वो प्री अरेस्ट बेल करवा के आए। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, करें। उसने तो अपना मोबाइल भी दे दिया। आप जब बुला रहे हो वो आ रही है, फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि जी आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया, कोई बात नहीं, 5 रुपए का नया सफा आएगा, हम आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। और ये सब इनका तौर तरीका था कि हम लोग किसी तरह टूट जाए और ये जितने पैसे मांगे हम लोग फौरी इनको दे दें। इस दौरान आईओ और उसका जो फ्रंट मैन है, जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से यार पैसे तो सारा शुरू तो ही पता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਨਨ ਆਫ ਯੋਰ ਐਪਸ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਐਪਸ ਭਰਾਵਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ, नो वन गिव्स अ अबाउट यू, यू नो। बेशक पाकिस्तान हो जो उत्थे गैमलिंग दी करो, जेड़ी मर्जी ऐप प्रमोट करो, बाद नाल इन्हां पैसे देंदे रहो, इन्हां मूंह विच रोटी पाई जाओ, ठीक है, चलते रहो दे तुसी। मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ये लोग चाहते क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी USDT भी अपनी जेब में डाली। बिल्कुल। मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अरूब का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इवन मुनीब जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अब्बू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र नहीं किया, उनकी अपीयरेंस नहीं हुई, 80 साल एंड अबव की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पास 1 टका नहीं है इनको देने के लिए। सॉरी। उसने मेरी बात सुनी, कहता अच्छा। उसने एज इट इज जब ये बात आईओ को बताई, आईओ आगे से इसको कहता कि इन्हां दे कोल 40-50 करोड़ रुपया सैट भी पराउंदा है। मेरे दोस्त ने एज इट इज मुझे ये बात आके बताई। अब क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी, जब मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई, मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है। Damn, bro. मेरे दोस्त ने इवन मेरे एक और दोस्त से भी बात की, उसने मना कर दिया, कहता यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ पे बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की, आईओ कहता कि हम 60 लाख से नीचे नहीं लेंगे, अरूब की हद तक, अभी हम डकी की बात नहीं कर रहे। ये बात जब उसने मुझे आके बताई, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं 60 लाख, या मेरे पास 60 रुपए नहीं है, सब कुछ इन्होंने ले लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, मेरा रिमांड लेने के लिए जब कोर्ट में गए तो मेरी फैमिली वहां पे आई हुई थी। उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के, रंग उनके उड़े हुए थे, कहा कि साद जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे दो। अरूब कांप रही थी, कहती कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है।
मुझे Yeah, नहीं पता bro. कि आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, प्लीज ये जो मांग रहे हैं दे दो। जब मैंने उनकी शक्लें देखी फैमिली की, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास 60 लाख रुपए वाकई में नहीं है, आप किसी से बात कर लें। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं। अच्छा। तो हमने इनको ये सारी कहानी बताई है। मेरे एक मामू इधर पाकिस्तान में होते हैं, वो भी आए हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया, वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। ओके, डब्ल्यू मामू मैन, डब्ल्यू मामू, डब्ल्यू फॉर मामू, क्लैपिंग फॉर मामू मैन। एटलीस्ट कोई ना कोई रिलेटिव आते काम आई या यू नो यूजली एस टाइम आते रिलेटिव भी आते ने यार, लगे रहने दो। तो पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं। ओह अच्छा अच्छा, आई डोंट नो केड़े भाई ने, निक्का भरा या बड़ा भरा है, तुम आई डोंट नो, या वो मेरे मामू ने दिए हैं। ये सारी बातों का मुझे बाद में पता लगा। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका था। वहां से मुझे आइडिया हुआ कि इट वॉज नेवर अबाउट द केस, भुखे आए पैसा चाहिए था, was always about the money। मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया कि इनको शायद पैसे मिल गए। वो इवन कमरे से चले भी गए थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। जब वो कमरे से गए हैं, तब मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दी है इस सारी कार्रवाई के लिए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है, इट्स ओके। खैर मेरी फैमिली को 5-10 मिनट दिए हैं मेरे से बात करने के लिए और वो चले गए। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका था। इतना लंबा रिमांड होता नहीं है। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर, बंदा आपने याद रखा, बिग ब्रदर इस बार फिर से NCCI ऑफिस आता है, लेकिन ये इस बार मेरे से मिलने आता है। मेरे से पूछता है कि किधर तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। उसने मेरे से पूछा कि यार इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों हुआ है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूँ। इनके पास मेरे सारे मोबाइल हैं, इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए हुए हैं, सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा रिमांड डिमांड करते हैं। कहता अच्छा, तो इन्होंने पैसों की बात की है तेरे से, क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं था करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली तेरे से डिमांड की हो, या किसी ने कहा हो कि तू अगर पैसे दे देगा तो तेरी छूट हो जाएगी। फिर वही बात कि मुझे नहीं था पता कि वो बंदा कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं। उसने मेरी तरफ देखा ऐसे, कहता आर यू श्योर। मैंने कहा जी। इवन उससे मुझे एक पॉइंट पे बड़े गुस्से से देखा। कहता कि देख ले, अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। कहता ठीक है। वो चला गया। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। जो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि NCCI की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट पे मैं इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दें। मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जज साहब के सामने खुद ही बोल दिया कि यार रिमांड ले लें। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब NCCI ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के भी मेरी फैमिली से पैसे लिए। खैर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये IO से पूछो कि अब क्या इसने मेरे साथ करना है। कहता कि मैंने बात की है। वो ये नहीं कह रहा कि अब आपकी बेल करवानी है, वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हैं, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 और पैसे दो, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ है। ब्रो व्हाट किस वे कैसा केस है यार, है कैसा केस है। लाइक यहाँ ते आदे वकील कोई काम दे नहीं आए, यहाँ दे वकील भैड़े आ या सारे वकील ऐसे आ या जेड़े अगले ने जेड़े पैसे मांग रहा ओ तगड़े आ बाले यार। लाइक दिस अ क्रेजी केस ब्रो। मतलब आउट ऑफ नो वेयर नवे परचे आ रहे, नवे FIR आ रही ने, नवे परचे तैयार होए रेडी पे आ अबाउट नथिंग, जड़ी बंदे ने बिल्कुल की नहीं जड़ी चीज़। That's insane man, that's some insane shit just because of some money ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਰ ਅਕਾउंट ਉਹਨੇ ਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, और की चाहते कपड़े लवा लो तेको। और जब मैंने ये सुना मैं बर्बाद, मैं टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको को 4 पर्चे देने 400 दें, मैंने अब 1 टका नहीं देना इनको। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी। एग्जैक्टली कहेंगे कि जी अब हम डकी भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद करेंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो। ये तो ठीक है। आ जाएंगे। हाँ, अगर आप मेरी एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे
कहीं से तो दे, एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया, मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफ़े की एक लाइन का एक लफ्ज़ दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफ़े के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट हैं, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम NCCA के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूँ। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, तो हो गया, तो बोलने कोई मसला नहीं है। आज डक्की भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डक्की भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी बात तो नहीं कर सकते डक्की भाई, इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो Damn, that's sad, bro. That sucks. That is so bad, bro. Like, what happened to this guy, man? ये अद्धे घंटे दी और वीडियो पे यार ना और क्या खोले दा नाले आई होप के यार ए वीडियो अपलोड होने तो बाद शोदे तो और भी ना कोई पंगा पै जे जो साहब होया ना निक्की निक्की गल दे उत्ते पैसे मंगदे आए, कोई और कम खराब करदे आए और ब्लैकमेल करदे आए। ते आई होप ए वीडियो अपलोड करने तो बाद शोदे ते और ना कोई 5-7 पर्चे कर देने। कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है? मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशल हो गया। जुडिशल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशल कर दिया है। अब जुडिशल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार NCCA ऑफिस वापस आता है, वहाँ पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से NCCA ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए हैं, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है। उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए? मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुँचाएँ। तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमने दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहाँ से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बिठाया और मुझे जेल ले गए। डक्की भाई को जो है तकरीबन 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने गुज़श्ता रोज़ जो है डक्की भाई को जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डक्की भाई को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होना कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है, बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक के अंदर भी देखते हैं वो, आपके कान के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके लिप्स ऊपर करके आपकी ज़ुबान निकाल के। चेकिंग होने के बाद मुझे लेके जाया जाता है मेरे सेल की तरफ, जिसको जेल की ज़ुबान में चक्की कहते हैं। जेल के सेल का साइज़ आप ऐसा समझो कि कुछ 6 से 7 टाइलें हैं ना, उतना साइज़ होगा।
उसका, या फिर एक किंग साइज मैट्रेस अगर एक अंदर पड़ा हो तो वहाँ पे और मजीद जगह नहीं है। ये जेल के सेल का साइज होता है। कॉर्नर पे जो है वॉशरूम लगा होता है जो कवर्ड नहीं होता, उसके आगे एक छोटी सी दीवार लगी होती है, यानी कि अगर आप खड़े हुए हो तो बाहर से देखने वाला बंदा आपको नंगा देखेगा, लेकिन अगर आप वॉशरूम करने के लिए बैठे हो तो आपके चेस्ट से ऊपर जो है आप विजिबल होगे, नीचे आप कवर्ड होगे। इस हद तक बस दीवार होती है वहाँ पे। उसी के ऊपर जो है वो एक टूटी लगी होती है पानी की। मैं जब अपने सेल में आता हूँ तो शाम हो जाती है, मुझे सेल में लाते ही लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस होता है। मुझे नहीं समझ आ रही होती है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहुत ऊंचा पंखा लगा होता है जहाँ से मुझे आइडिया होता है कि कोई चाह के भी खुदकुशी नहीं कर सकता। अंधेरा हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। खैर मैं दीवार के साथ लग के बैठ जाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, और सोचता रहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं अपने सेल से बाहर देखता हूँ तो 1.5 लीटर की बोतल पड़ी होती है, उसके ऊपर कैप भी लगा होता है। मेरा हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन कोई 15-20 मिनट के अंदर एक इंचार्ज जो है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। मैं उसको आवाज़ देता हूँ कि सर, वो मेरी बात सुनते हैं, हाँ जी। मैं उनको कहता हूँ कि सर वो सामने 1.5 लीटर की बोतल पड़ी है, वो काइंडली मुझे पकड़ा दें। मुझे बोतल पकड़ा देता है। वॉशरूम से मैं वो 1.5 लीटर की बोतल के अंदर पानी भरता हूँ, उसका कैप बंद करता हूँ। सितंबर का टाइम होता है, शदीद गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि आप कूलर के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपनी कमीज़ उतारता हूँ, बॉटल को अपनी शर्ट के अंदर डाल के ऐसे उसको मैं लपेटता हूँ, अपने सर के नीचे रख के मैं लेट जाता हूँ। ठीक है। 2 दिन मेरे ऐसे ही गुजरे। जेल के एक्सपीरियंस में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं वो फिर कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँगा। 3 दिन मैं उस सेल में रहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तीसरे दिन एक ऑफिसर आता है और उसके हाथ में एक चिट होती है। वो चिट की तरफ देखता है, वो कहता है साधु रहमान की रही। मैं अपना हाथ करा करता हूँ कि जी सर मैं। कहता आजा तेरी मुलाकात आई है। वो फीलिंग ही बड़ी अजीब सी थी कि आपको किसी ने पूछा है, आपसे बात की है किसी, और इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुलाकात क्या होती है। खैर उसने मुझे मेरे सेल से निकाला, मुझे एक जगह पे ले गया, और 3 दिन बाद मैंने किसी अपने को देखा। मेरी फैमिली, अरूब और ज़िया वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको मिल नहीं सकता था, उनको गले नहीं लग सकता था, मैं उनको मतलब बैरियर हमारे दरमियान में शीशा लगा हुआ था। उनकी तरफ एक लैंडलाइन पड़ा हुआ था, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा हुआ था, और उस लैंडलाइन में मैंने जिंदगी में इतना बेबस फील नहीं किया। एक लैंडलाइन उनकी तरफ पड़ा होता है, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा होता है। एक तरफ से अरूब फोन उठाती है, फिल्मों में आपने देखा होगा, और वो कहती है क्या हाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट मैं भी चुप रहता हूँ, 2 मिनट वो भी चुप रहती है। अचानक कहती है कि साथ ये क्या हो गया ये सब। मैंने कहा रूप मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वाकई उन्हें नहीं पता यार। नहीं है। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, अचानक ज़िया अरूब को कहता कि मैंने बात करनी है साथ से। मैंने कहा हाँ करवाओ। ज़िया अरूब से फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साथ आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा कहता यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था और उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा ज़िया देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको पता था। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए, और उसने मुझे कहा था कि मुझे डिटेल चाहिए। तो ज़िया कहता कि हाँ वो हमारे पास आया था, एक कागज़ पे सारा मेरा वो लिख के गया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैसे पहुँचाए, किसने दिए, किस बैंक से निकलवाए, वो सारा नोट डाउन करके गया है। मैंने कहा कि देखो ज़िया इस वक्त ना हमें नहीं पता कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। हमने जिसको भी अप्रोच किया है सब ने मैं भी आदत है ट्रस्ट कर लो। जिन्होंने कोशिश की है वो भी कोई मसला को बेहतरी की तरफ नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुन लेते हैं हम एक बार इस बंदे की बात। ज़िया ने कहा ठीक है। जब ज़िया ने मुझे ये बात बोली तो मुझे आइडिया हो गया कि वही जिनका नाम हमने अभी बिग ब्रदर रखा था वो मेरी फैमिली से मुलाकात कर चुका है। खैर ज़िया से बात होने के बाद ज़िया ने फ़ोन मामा को दे दिया। मामा भी रो पड़ी, गपशप हो रही ही। साथ उन्होंने कहा था कि ये जो आपका दोस्त आया है, कहता कि आप मेरी भी माँ है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अब 1 भी रुपया किसी को नहीं देना, बस जो आप लोगों ने दे दी है उसकी मुझे डिटेल दे बस। खैर भी 15-20 मिनट होते ही हैं, वो फ़ोन बंद हो जाता है। ना मुझे मामा की आवाज़ आ रही होती है, ना मेरी आवाज़ उन तक जा रही होती है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया। वहाँ का एक इंचार्ज मुझे मेरे सेल में वापस छोड़ देता है। मैं वापस उसी जगह पे आया था। वक्त के साथ साथ जेल में अपने आप को एडजस्ट किया, मेंटली एक्सेप्ट किया कि भाई तू अभी इधर ही है। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया चिट लेके, कहता साधु रहमान की रही।
मैंने कहा जी सर मैं। कहता आजा तेरी मुलाकात है। मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर, ओह बिग ब्रदर इज हियर। खैर उसने कॉल उठाई, कहता कैसा है डकी। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक। कहता तू अपनी फैमिली के सामने रोया क्यों था। मैं उनसे मिलने गया था तो वो तेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा था उधर। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया उनको देख के। कहता नहीं हो, पता है जेल हो गई है तुझे तो क्या हो गया है, अंदर बैठ के घर वालों को तो नहीं ना परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाया कर, हंसता खेलता उनके साथ शुगर लगाया कर। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं bro I mean like I mean obvious ठीक है अपनी गाल नानू के यार। एंड फिर फैमिली नानू में लगता है कि यार बड़ा कम खराब है जो बंदा रोए शोए ना या थोड़ा यू नो जो इमोशंस ना वा आए, फिर फैमिली भी आती है यार चलो इन्ना कम खराब नहीं, इट मेक सेंस। बट यार जो शोदे नाल होया ਉਹਨੂੰ ही पता है और दूसरे बंदे ਨੂੰ नहीं पता। समझ जो ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਲ ਜਾ ਵੇਲਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਦੇ ਨੂੰ पता, फिर बंदा समझ जो ना हो ही जाता है। उनको कोई टेंशन ना दूं, लेकिन चेहरे पे बंदे के लिखा आया था। कहता खैर मैं गया उस दिन तेरे घर, माँ जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, तुझे मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तू तगड़ा रहे। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ तेरे रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे इल्म नहीं किसी चीज़ का, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, जस्ट इन्फॉर्म अस। साथ मैंने उनको ये भी बताया कि जब मैं NCCI की कस्टडी में था तो वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उस इदारे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया। Dude, what a twist! Wait, what? No way! That is insane. But good, you know? जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उस इदारे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माई टीम हैंडल इट। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हाल चाल पूछ और रोना धोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, कह के बड़ा मज़ा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी तैयारी है NCCI की, बहुत अच्छी बात है। कैंसिल करवाने डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले NCCI के अहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद वो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें हुई हैं जो मैंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। मैं जब 23 दिन रिमांड में था, मैं इतना मायूस हो गया था, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ याद आमदा है। मैं किसी जगह नहीं, मेरी फैमिली किसी जगह नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता था। मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ। NCCI अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डक्की भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला, NCCI के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूब जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरों और 1 फ्रंटमैन पर। ये हो क्या रहा है? बैटिंग एप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के जरिए पैसे मंगवा रहे हैं। मुकदमा डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। 12 लोग हिरासत में हैं FIA के। अफसर शुएब रियाज और सरफराज चौधरी, उन्होंने रिलीफ के नाम पर अरूब जतोई से रिश्वत मांगी पर 90 लाख। नाउ इमेजिन कि ए बंदा बस यूट नहीं रहा है ना वड्डा यूट्यूबर ना होंदा, बस नॉर्मल बंदा होंदा, फिर ए नाल की होना है। ते थोड़ा यूट्यूबर है, थोड़ा लोगों ने पता, लोग मीडिया मूडिया आउंदा जेल दे बाहर पुछण गिछण समझना, तां मीडिया नाल थोड़ा काफ़ी फायदा होया है। निके मीडिया आम बंदे नूं तो पुछण भी नहीं आउंदा, फिर उन्हें कित्थे जाना है, समझ रहे हो ना। रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। वो लोग जिनके कंधों पे निजाम की वेट व्हाट पर 90 नो है नहीं। सरफराज चौधरी, उन्होंने रिलीफ के नाम पर अरूब जतोई से रिश्वत मांगी पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर
पार्लियामेंट में 70% लोग पति बैठे हुए हैं। रिश्वत That's वसूल की true. गई। वो लोग जिनके कंधों पे निजाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी गई थी, वही खुद इस निजाम में नकब लगाने लगे। जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाबदेह हैं। 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत पर 90 लाख ते वो दूजे आए जड़े तुने 7-8 करोड़ लेने वो भी वापस करो ना। आई होप यार जड़े पैसे ना ले आए सारे दे सारे एटलीस्ट 50% भी वापस लप जान तो चंगी गल है। 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। आरोप जतोई इस बात पर डट गई हैं कि NCCI अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़ेंगी। जिन ऑफिसर्स ने मेरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर्स ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन की गालियां दी, अगले दिन खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम NCCI ऑफिस में मिला। उसने मेरे से पूछा ढकी तेरे पे केस क्या है। इसमें मैं FIA एंटी करप्शन इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना। मेरी फैमिली के एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे FIR लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं ख़त्म हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था। सही बताऊं तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहता डकी वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है। W's for big brother man, clapping for big brother। कि आप हमें मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है, वी आर हियर टू सर्व दिस कंट्री। अगर आप गलत होते या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना देते, लेकिन हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन ही चाहिए, खुश रहें। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ NCCI ऑफिसर्स हैं जो दर्जनों पॉडकास्ट दे रहे हैं पब्लिकली, लेकिन बैक एंड पे वो क्या हरकत करे उस चीज़ का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन जिन्होंने दिन रात एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए। और जब मैंने उनका कहा कि मुझे बताने दे लोगों को, तो कहते हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्फलेसली काम किया और एक भी पॉडकास्ट उनके एक भी ऑफिसर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। ये ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਵਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਚੌਧਰੀ 3,25,000 और पॉडकास्ट ये दे रहा है अनर्स करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। यार बड़ा ही कोई यार चवल दा पुत्तर है, सही गल है, गॉड डैम मैन। लेकिन बैक एंड पे क्या हरकत करे उस चीज का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं चाहिए उन्होंने, यू नो, एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए। और जब मैंने उनका कहा कि मुझे बताने दे लोगों को, तो कहते हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्फलेसली काम किया और एक भी पॉडकास्ट उनके एक भी ऑफिसर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। जस्ट वर्किंग इन द शैडोज। और मुझे और मेरी फैमिली को उन पे फ़ख्र है, और मेरी सिंपैथी हर उस फैमिली के साथ है जो कभी इन करप्ट NCCI ऑफिसर्स के थ्रू अफेक्ट हुई है। अल्लाह पाक किसी की फैमिली को उस चीज़ से ना गुजारे जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी है। एक और चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मेरे एक्चुअली वकला कौन है। तो मेरा केस जो है वो बैरिस्टर अमृत शेख देखनी है और एडवोकेट उस्मान लतीफ़,
जो मेरा केस आगे परसू कर रहे हैं। लेकिन मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं, जितने वकला हैं जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने सबके टिकटॉक वीडियोस देखी हैं। मैं दिल से उन तमाम एडवोकेट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। इस पूरे 100 दिन के अंदर जो मेन सवाल लोगों का था ना, वो ये था कि यार डक्की भाई आप तो इस मामले से फारिग होने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 8 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे आए हुए, मैंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा है। जहां 8 साल इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, तो ये 3 महीने की मुश्किल में मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा तो ये तो मेरी सेल्फिशनेस है कि जहां 8 साल इस मुल्क ने आप पे कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। लो भाई नहीं जाएगा, इधर ही हूँ। ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, गुड, पाकिस्तान में ही मैं रहूंगा। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इस पूरे 100 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई भी और मुझे पता है कि मैं इस वक्त स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ले सकूँ, लेकिन आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती ही, जब जब उनको कोई सवाल होता था, जब उनको किसी चीज़ की टेंशन होती ही, ये जो बिग ब्रदर है ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। और इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन इन करप्ट माफिया के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और ये सब क्रेडिट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं अगर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो कोई 40-50 मिनट की नहीं, ये वीडियो कुछ 4 घंटे की होगी। वैसे भी आप लोग कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो कोई टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट बता रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा इनके शुक्रगुजार हैं। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुश्किल टाइम पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने
Okay, damn. Okay, यार, at least he's back, bro. Not even 9 million, 9.5 million subscribers, bro. God damn, bro. Bro, किंज मैं पहला आख्या, जैसे मैंने बोला था भाई कि तुसी टूर चो ना 5-7 साल पहला यार जिन्ने भी यार जदों डक्की बाई शुरू होया आया समझ रहे हो ना दैट रोस्टिंग वीडियो गेमिंग दे उत्ते रोस्टिंग करने वाली इफ़ यू नो उस टाइम आई लव डक्की बाई वीडियोस पर मैं बस व्लॉग्स नहीं मैं वेखदा आ व्लॉग्स मैं नहीं वेखदा आ पर डक्की बाई दे उंजे इधर उधर ऑफ कोर्स पोस्ट वगैरह विद वेखदा वुखदा या बट या वो मैं व्लॉग्स में ज़्यादा फॉलो अप नहीं करदा आया बट ब्रो स्टिल अ फैन ऑफ कोर्स नाले मैनू पता आ कि वट दिस गाय इज़ गोइंग थ्रू यू नो कि इन्हों कि जेल विच लैके गए आ एंड ऑल दैट इनू फड़ लिया गया है तो गैमलिंग की जी और पूरी आप स्टोरी देखी तो यू नो वो बारे मैनू जरूर पता आ कि जी सारी गैमलिंग है जी सारी कहानी हुई है अरेस्ट वाली समझ रहे हो ना पर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਹਿਊਜ ਫੈਨ ਆਫ ਦਿਸ ਗਾय ਯੂ ਨੋ ਐਨੀ ਮੋਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਨੋ ਸਿੰਸ ਦਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਖਣ ਤੇ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੈਡ ਮੈਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਸ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਯੂ ਨੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚਵਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੋਦੇ ਦੇ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂ ਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੱਭ ਗਏ ਹੁਣ ਅਰੂਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਗਿਆ 90 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਨਸੇਨ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ ਕਢਾਓ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰੇ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰ ਗੈਮਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ पूरा केस क्या पैसे आंदा है कि उन्होंने पैसे चाहिए आए पैसे सानू दे निकल जा पर वो निकलता आया पैसे देंदा आया निकलता आया वो फैमिली मैंबर ते केस बना लैंदे एक और FIR केस बना लैंदे तो सब तो वड्डा चवल दा पुत्तर ते आई है सरफराज चौधरी ठीक है सब तो वड्डा चवल दा पुत्तर ते होई है बट सैड टू से यार इस तो पहला किन्ने लोगों के नाल उन्हें तो पूरे डिपार्टमेंट ने किन्नी ना इंसाफी की होनी है यू गेट व्हाट आई मीन कि यह तो शुदा इन्ना वड्डा यूट्यूबर है इनू 100 दिन झेलना पिया सारा साहब वो जो आम बंदा है वो की होया होना है यू नो तो first of all you know W's to the big brother W's to Arooj especially and his family you know but especially Arooj जिन्हें भी इधर उधर you know गलबात फैलाई है all that ते सारे लोगों ने जिन्हें दी सपोर्ट की थी W's for them man सीधी जड़ी गल है but yeah it's good to see him के थोड़ा happy at least and भी थोड़ा happy बंदा हो गया है कि हैप्पी टू सी अस एंड वी आर हैप्पी टू सी हिम मैन ठीक है तो वेखने हूँ डक्की बाई कैसा व्लॉग लिया तो कैसा कॉन्टेंट लिया समझ बिकॉज इट्स अ न्यू डक्की गाय यू नो नवा डक्की बन गया यू गेट व्हाट आई मीन आई एम श्योर एना जेल तू है पूरे चीज़ तू पूरी एक्सपीरियंस तू काफ़ी कुछ सिखिया होना है कि जो आपूँ भी आख्या है तो बट या लेट्स सी अगला जो कॉन्टेंट आंदा वो कैसा आंदा बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो जनाब अली मैं तुहानू वेखांगा अगली वीडियो दे विच अंटिल दैन अस्सलाम वालेकुम।